Hello everyone, this is Pradeep Kumar. I'm your English teacher and I'm with this chapter Breath in the House. Today I will give you the summary or explanation of this chapter. This is basically a very interesting chapter. You at the end of this chapter you will come to know a very important fact and so much information you will get. You will also get entertained by the story, the narrator, how the narrator has narrated the things. Ruskin Bond is the writer who has written so well, and he's a very famous writer, as you know very well. He has written so many literature, like the room on the room on the roof, and one other Blue Umbrella. These are the some famous work done by the Ruskin Bond. One another, The Flight of Pigeon. So he's a very famous story writer. He has written that story, Breath in the House, and basically the narrator wants to convey a message that in a very funny or in a very interesting way. So without any delay, I'm going to tell you the summary of this chapter. In this chapter, there are one house where nearby that there is a people tree. On that people tree, a Preth lived since long time. For many years, he is living there. Basically, Preth means a ghost who usually move furniture here and there and do notorious things. So he is a very mischievous ghost, and but he has never there nearby that there is a house, and in the house he has never bothered anyone. He never bothered anyone without bothering anyone. He kept on living his life or living on the people tree. But when, due to some reason, he had suffered from, he has to shift his place from that people tree to the house, then story take a turning point. Initially, on the people tree, Preth lived happily as ever. But after the cutting down of the chop down of that tree, he lived on the house nearby that, and he kept on bothering and making life miserable of the members those live in that house. So it's a very interesting story. And initially, grandfather of the narrator, and Uncle Cave and one aunt is there in this story. So narrator wished to convey a very interesting, very fresh message that how our life can be some others, we can disturb some others' life also. This physical or emotional world we are attached by others, and we human beings have tendency, we understand the feelings of others, but sometime it happens then Preth also get connected, and Preth also having feelings like that, some sort of that they wish to live with those people and make life troublesome. Actually what happened, in the beginning grandmother चाहती हैं, स्टोरी में बताया जा रहा है, grandmother wish that they wants to go to the new place, यानी कि नए घर जाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि एक हाउस में एक प्रेत रहता है और प्रेत ने उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना रखा है, इंटॉलरेबल है सॉरी, और इंटॉलरेबल होने की वजह से उनकी लाइफ में वहाँ पे उस जो हाउस है उसको वो छोड़ना चाहते हैं. होता क्या है, इनिशियली जो है वो प्रेत लिव्ड ऑन द पीपल ट्री यूजुअली रहते हैं, पीपल ट्री पे प्रेत रहता है, और वो इनिशियली तांगा वगैरह है या कार वगैरह है उनके इंजन ख़राब कर देता है, तांगे की डायरेक्शन ख़राब कर देता है, और ही इज़ वेरी क्वाइट हैप्पी विद दैट इन्वायरमेंट. जो रोड की साउंड है, ट्रैफिक है, वो बिल्कुल फुल्ली उसमें इन्वॉल्व है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, ही नेवर ट्रबल एनीवन. बट वन डे व्हाट हैपेंड, उससे पहले मैं बताता हूँ होता क्या है. ऐसी मान्यता है
कि पीपल ट्री के नीचे रात को जम्हाई नहीं लेना चाहिए, रात को घूमना नहीं चाहिए। उसके पीछे फैक्ट ये बताते हैं कि इफ़ यू विल yawn beneath the people tree, the prey will jump into the stomach and it will upset the stomach। तो ये उस बताती है उनकी दादी माँ कि उसके नीचे जाओगे अगर पीपल ट्री के नीचे रात में, तो आपके जो है वो जब जम्हाई लोगे या जो भी करोगे तो आपको क्या होगा, प्रेत आपके स्टमक चला जाएगा और स्टमक को अपसेट कर देते हो। एक इंसिडेंट क्या है, जसपाल जो है टेलर है ग्रैंड मदर का, जसपाल नेवर एबल टू डिलीवर ऑन टाइम। जो भी उसके पास काम आता है वो उस काम को करने में अपना सक्सेसफुल नहीं रहता है, मतलब एक गिवन टाइम में डेडलाइन में वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके पीछे कारण क्या रहता है, एक स्टोरी है, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन जसपाल वाज रोमिंग और बिलो द अंडर द बीनीथ द पीपल ट्री ही yawned एंड विदाउट एनी स्नैप, जो चुटकी होती है वो बिना उसने वो नहीं बजाई, इसकी वजह से उसके स्टमक के अंदर प्रेत चला गया, ये स्टोरी कही जाती है। और प्रेत के जाने से उसका टमी जो है, स्टमक है, वो अपसेट रहता है और वो इसी वजह से तब से वो सिंस दैट डे उसका स्टमक अपसेट रहता है और वो लगातार ही उससे पीड़ित रहता है। तो जसपाल के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक जोक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। और एक चीज़ और चलती है साथ में, जो नरेटर ये भी बताता है कि जो साहब लोग हैं, जो साहब लोग हैं, जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो हैट पहनते हैं सर पे, और दो हैट ड्यू टू द ब्रीच, वो कर्ज किसको देते हैं, किसको दोष देते हैं, ब्रीच को कहते हैं। ब्रीच की वजह से हमारी हैट जो है वो रिमूव हो गई है और वो नीचे गिर जाती है। वो ड्यू टू होता है कि एक्चुअल में प्रेत वो करता है ये सारे। एंड प्रेत ये सब चीज़ें करने के बाद, क्योंकि वो इनविजिबल होता है ह्यूमन आइज को, तो दिखता नहीं है, तो सब लोग बिलीव हवा को ही करते हैं। ब्रीज मीन्स होता है जो हवा बहती है। इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। और बट एक्चुअल में होता क्या है, पीपल ट्री को काटना पड़ता है, उसके बाद लाइफ और ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है। पीपल ट्री हैड टू कट डाउन ड्यू टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD बोलते हैं उसको। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या है, रोड का चौड़ाईकरण करना है, उसको चौड़ा करना है। तो वो ग्रैंडफादर से परमिशन लेते हैं कि इस रोड को हम, जो उसकी ब्रेथ है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वाइडन करना चाहते हैं, तो हमें ये जगह आपकी ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी हमें लैंड प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसी लैंड पे वो पीपल ट्री है। अब पीपल ट्री को चॉप डाउन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब घोस्ट जो है कैन, इवन द घोस्ट कांट डू एनीथिंग। PWD डिपार्टमेंट के साथ तो वो कुछ नहीं कर सकता है। नरेटर ने ये भी कहा है कि नॉट इवन अ घोस्ट कैन प्रिवेल अगेंस्ट द PWD, मतलब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। अब PWD से तो कुछ कर नहीं सकता, पर नियर में उसके जो घर है, हाउस है, तो वो उस घर में चला जाता है और सडनली चीज़ों को उसका अंदाज़ा कब होने होता है, बहुत जल्दी ही अंदाज़ा होने लगता है। जो बंगला है, रेजिडेंस आवर बंगलो, जो उनका घर है, वहाँ पे वो रहने लगता है। और चीज़ें शुरू कैसे होती हैं, सबसे पहले जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर का स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है, उसको वो इधर उधर टेबल पे छोड़ती हैं और वो यूजुअली मिसप्लेस हो जाता है कई बारी। और होता क्या है, उसको पा भी लेती हैं, बट ये बहुत कई बार होता है प्रिकॉशनली। एक बार क्या होता है, जो वाइल्ड बियर होता है, वहाँ पे उनके घर में एक वाइल्ड बियर की स्किन लगी रखी होती है, उसको चश्मा पहना दिया जाता है। तो वो सब लोग ये सोचते हैं कि नरेटर हो सकता है, क्योंकि नरेटर इज़ द ओनली बॉय और मिस्चीवियस एक्टिविटी नरेटर कर सकता है। तो वो उसका शक किस पे जाता है, प्रेत पे न जाके उनको ये लगता है ये है। बट कोई बात नहीं, लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन अब ये होता रहता है। एक बार क्या होता है कि वो जो स्पेक्टिकल्स हैं पैरट के केज के पास हैंग करे हुए पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये कंफर्म हो गया कि कोई अदर एजेंसी इज़ वर्किंग ऑन दैट, कोई ना कोई और लोग इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये इस बच्चे का काम नहीं है। ग्रैंडफादर के साथ अगला क्या होता है, ग्रैंडफादर के साथ नेक्स्ट चीज़ होती है, गार्डन में वन मॉर्निंग उनके देखते हैं कि
पेड़ पौधे होते हैं उनको उखाड़ देता है, काट देता है और वो गिरे होते हैं। उनको लगता है कि ये इट देन अंकल टर्न केन को क्या लगता है कि वो पूरी रात वो ऐसे, हालांकि बहुत गहरी नींद में सोने वाले व्यक्ति हैं, बट उनके साथ क्या होता है थ्रू आउट द नाइट उनका जो चादर होता है, जो वेट कवर होता है, बेड शीट होती है या जो भी चीज़ें थी वो बेड से नीचे गिरती रहती हैं पूरी रात। थ्रू आउट द नाइट वो सो नहीं पाते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में जब ब्रेकफास्ट पे वो आते हैं तो वो ये चीज़ बताते हैं सबको कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एंड इस तरह से उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी, इसमें भी इस बच्चे का नरेटर जो भी खुद है, नरेटर का काम है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि वेयर वर यू यस्टरडे नाइट व्हेन आई वाज स्लीपिंग, वेयर यू वर स्लीपिंग लास्ट नाइट। इस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहता है आई वाज एन एलवेली, यानी कि वो अपनी साइड बाई साइड बताता है ग्रैंड मदर की, ये ग्रैंड फादर की तरफ इशारा करता है, ग्रैंड फादर्स रूम। वो नरेटर बताता है कि मैं ग्रैंड फादर के रूम में था। एंड ग्रैंड फादर कहते हैं ही इज़ राइट एंड थ्रू आउट द नाइट, क्योंकि मैं नींद का कच्चा हूँ तो मुझे पता है कि वो रात में कहीं नहीं गया है। तो इस तरह से स्पेक्टिकल का केस हो गया, स्वीट पीस का केस हो गया, अंकल कैंस का बेड क्लॉथ वाला सीन हो गया। ये 3-4 सीन क्रिएट होने के बाद में क्या होता है, अब क्या है कि अब वो सब लोग डरे होते हैं कि अगला क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू बी वंडर। सो वी डिड नॉट हैव टू वंडर लॉन्ग, हमें हालांकि बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, अगली घटना भी घटी। क्या होता है, वैसेज फेल ऑफ द टेबल, पिक्चर फेल फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो बर्तन होते थे, जो पॉट होते थे वो गिर जाते थे और पिक्चर्स ऊपर से गिर जाती थी। इस तरह की थिंग्स वर वर्स्ट दैन द आंटी मैनी केम टू स्टे। अब आंटी मैनी आए यहाँ पे रहने के लिए तो और चीज़ें बिगड़ गई। प्रेस सेम टू टेक एन इमीडिएट डिसलाइक ऑफ आंट मैने। आंट मैने को तो बिल्कुल प्रेज जो है पसंद ही नहीं करता था और वो इमीडिएटली उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। क्या हुआ कि जो टूथपेस्ट होता है और टूथपेस्ट से और शेविंग क्रीम जो फोम होता है, शेविंग फोम, वो सेम ही पैकिंग में आते हैं, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम, तो वो एक्सचेंज कर देते हैं। अब वो आंट जो होती हैं मैंने वो ब्रश करती हैं पे टूथब्रश पे लगा लेती हैं उसको, क्या कहते हैं, शेविंग फोम को। तो वो इंसिडेंट क्या होता है, अंकल केम ब्लेम करने लगते हैं कि ये इनको रैबिज हो गया, इनके मुंह से झाग आ रहे हैं, इस तरह से ये सब बातें, ये सीन क्रिएट हो जाता है, उनके मुंह से फोम आने लगता है, बहुत ज़्यादा झाग बनने लगते हैं। तो अंकल कैन शाउटेड शी हैड गॉट रैबिज एंड वी रैन फॉर आवर लाइफ। हमें दौड़ना चाहिए, हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनमें रैबिज एक्चुअली क्या होता है, डॉग्स के काटने से और उनके काटने से रैबिज होता है। रैबिज की सिचुएशन यही होती है कि रैबिज में दूसरे को भी इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, वी हैड टू लीव द दिस हाउस। अब ये ग्रैंड मदर ने कहा, डिक्लेयर किया, इफ़ वी स्टे हेयर मच लॉन्गर बोथ कैन एंड मैनी विल हैव नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब है मेंटली वो पागल हो जाएंगे। कैन तो सॉल्व कर रहा है, ही इज दैट शी इज़ हैविंग रैबिज और वो आंट मैंने भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड कर लिया। आई थॉट आंट मैंने ब्रोकन डाउन लॉन्ग एगो, मतलब आंट मैंने तो, मुझे लगता है कि आंट मैंने तो पहले से ही थोड़ी सी मैड टाइप की हैं, पागल है। नन ऑफ योर चेक स्नैप्ड आंट मैंने। इस तरह से जो आंट मैंने और ये अंकल के इनको लेकर और सब चीज़ें स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो लोगों को ये लगता है कि रूम, ये जो मकान है हमें चेंज करना चाहिए। ऑल आर एग्री। आई सेड आई कांट इवन डू माई होमवर्क इन इवन द इंक बॉटल, जो पहले इंक बॉटल में आया करती थी, वो इंक बॉटल भी इम्पटी है, मैं होमवर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से वो नरेटर कहता है। पर फाइनली क्या होता है, लेट्स सी, देयर वॉज इंक इन द सूप लास्ट नाइट। ग्रैंड फादर कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, सूप में पड़ी थी इंक। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसप्लेस कर देते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। तो वो फाइनली डिजास्टर लेटर वी बिगन मूविंग टू द न्यू हाउस। ये सब होने के बाद में हमने नए घर जाना शुरू कर दिया और वो नए घर की तैयारी में हमने क्या करा, रूफ, जो भी 2 बुल-कार्ट थी, जो बैलगाड़ी थी, उनमें सामान फुल किया गया, फर्नीचर वगैरह जो भी हैवी फर्नीचर या हैवी लगेज जो था वो उसमें डाला गया। फिर द रूफ ऑफ द ओल्ड कार, जो कार थी ग्रैंडफादर की, उस कार के ऊपर भी सारा सामान लगाया गया अच्छे से।
फिर वो चलना शुरू होते हैं। जो भी रूफ़ पे से, ओल्ड कार के रूफ़ पे सारा किचन का सामान और ये यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह रखे गए और सारे के सारे लोग कार में ठुस गए या चले गए, स्क्वीज हो गए उसके अंदर। ग्रैंडफादर ने ड्राइविंग सीट ले ली और वो चलना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, इज द पैरट आउट ऑफ देयर लगेज रैक, क्या लगेज रैक से बाहर है पैरट? वो वहाँ पे ग्रैंडफादर को कन्फ्यूजन होता है, उन्हें कुछ आवाज़ आती है। नो ही इज़ नॉट, वो कहते हैं नहीं, बुल कार्ट में गया हुआ है, ग्रैंड मदर बताती हैं। तो ग्रैंडफादर कार को रोकते हैं और चेक करते हैं कि टेक अ लुक ऑफ द रूफ पे देखते हैं कुछ है तो नहीं। नथिंग, कुछ भी था नहीं वहाँ पे। एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पे कुछ अनयूजुअल सी एकदम से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ किसकी होती है? वही अंकल ग्रैंडफादर है उसको चुभती है। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि आवाज़ किसकी हो सकती है, समवन हु इज क्लबिंग टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ऐसा लगा उन्हें जो खुद से बातें कर रहा है, क्योंकि पैरट यूजली करता है ये सब काम, तो उन्हें ये लगता है ये पैरट तो नहीं है। पर वो चेक करते हैं, नथिंग, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और इस तरह से वो फिर से बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है, आई वॉज श्योर, वो कहते हैं कि इंजन स्टार्ट करते हुए कि मुझे लगता है वो पैरट ही था। बट ग्रैंडफादर जैसे ही आगे चलते हैं, अगेन स्टार्ट हो जाता है वैसे ही साउंड, और उस तरह की आवाज़ आती है। और वो आवाज़ हम सब ने सुनी है। वो आवाज़ क्या है? और हम सब समझ गए, इट वॉज द प्रेत टेकिंग टू इटसेल्फ। ये प्रेत टॉकिंग टू इटसेल्फ, यानी कि जो प्रेत है वो ही अपने आप से बातें कर रहा है। क्या होता है, लेट्स गो लेट्स गो, वो ये बोलता है चलो चलो, एंड इट स्क्विल्ड गिलफुली, यानी बहुत ज़्यादा खुश होकर वो कहता है, अ न्यू हाउस आई कांट वेट टू सी इट, नए घर में जा रहे हैं, मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता। व्हाट अ फन वी आर गोइंग टू हैव, हमें बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं नए घर में। तो इस तरह से ये स्टोरी फिनिश होती है। रस्किन बॉन्ड जो हैं इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश ओरिजिन के रहने वाले हैं, और इन्होंने, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो एक रूम ऑन द रूफ है, एंड ब्लू अम्ब्रेला हो गई, एंड फ्लाइट ऑफ द पिजन हो गए, इस तरह का कुछ वंडरफुल वर्क इन्होंने किया है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। इसको, वीडियो को आप देखिए, समझिए। इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।